हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग समराइज करने वाले हैं यूनिट नंबर 25 विच इज capital investment decisions. Okay, so again a very important unit which is part of your module C. I hope अभी तक के सारे सेशन आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है, so module C is all about your financial management. So where we already done with the financial management and overview, ratio analysis, interest in annuities, calculation of YTM, forex, and capital structure and cost of capital. So these videos are already available on channel. So अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से इनको आपका देखें। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है दैट इज अराउंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. Okay, and again very important unit for examination viewpoints and even for concept wise also. So you can expect downside 3 marks question based on this particular unit, right? So capital investment decisions, if you talk about this, so we have three major theories: NPV, net present value, the most famous one. Then we have IRR and payback period. Most of time you will see question around NPV or the other decision making tools, right? So here we have discounted cash flow method, which is investment appraisals. Then we have non-discounted cash flow methods. This is NPV and this is IRR. Then we have important point about the term loan, deferred payment guarantee, difference between term loan appraisal and project appraisal. Project appraisal, infrastructure project, disbursal of term loan and syndication of loan. So this is your course content which is part of your unit number 25. So before coming to the unit number 25, we let's have a quick look about the unit number 24, which is capital structure and your cost of capital. तो जहाँ पे हमने समझा था कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स whenever we do the capital budgeting, जब हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए प्लान करते हैं, so we required some budget, कुछ फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है. In the arrangement of that particular fund, we have two major sources. One is equity, another one is debt. ठीक है, in case of equity we generally lose degree of control, and debt is basically we have to make regular payments or we have to pay interest on that particular one. Cost of equity is quite higher compared to cost of debt. ठीक है, ये सारी चीजें जिनको हमने समझा था. So factors affecting capital structure: cost of capital. So cost of equity is higher than cost of debt. That's why वो जो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, नेट इनकम थ्योरी बाय डेविड डोरेन, वो सपोर्ट करती है कि डेट का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, देन वी हैव डिग्री ऑफ कंट्रोल, देन वी हैव ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमने अपने पास पिछले सेशन के अंदर आपका डिस्कस किया था. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट. ठीक है, विच इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हर एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखने के लिए मिलेगा, एंड कैसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हमने यहाँ पे आपका डिस्कस किया था. जैसे फॉर्मूला क्या होता है: पोर्शन ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस पोर्शन ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, अब इक्विटी का फर्दर बाइफर्केशन आपका हो सकता है आपका पोर्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स. ठीक है, इस तरीके से जो आपको जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया गया. ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया था. एंड योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दिस केस 14.50%. ठीक है, तो लास्ट सेशन के अंदर हमने ये सारी बातें जिनको आपका डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है so please do watch that particular session. That will provide a base or fundamentals for your capital investment, right? Now we'll talk about capital investment. देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट्स ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रोथ प्लान करता है, सो दे हैव सम लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस. ठीक है, जैसे they have to expand their branches throughout India or outside India. So for that one they'll require money. तो capital budgeting, then structure, कैसे वो money आएगा. अब वो पैसा हमारे पास है. Let's say we have 100 crore rupees to invest in our organization. So we will invest this particular money into productive capacities like building, machinery, आपका पेटेंट्स, कॉपीराइट, फर्नीचर, सॉफ्टवेयर्स. तो जो आपके नॉन करेंट एसेट्स हैं उनमें हम इसको आपका इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, एंड वी विल फ्यूल द ग्रोथ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो
तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी ग्रोथ आपका प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं. नाउ अब जैसे लाइक लेट्स से वी हैव दिस 100 crore rupees टू इन्वेस्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो वी हैव मल्टीपल चॉइसेस. ठीक है, वी हैव नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स कि प्रोजेक्ट ए को फाइनेंस करना चाहिए, बी को करना चाहिए, सी को करना चाहिए, डी को करना चाहिए. तो जहां पे आपको पहले इनके आपके रिटर्न्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली यू विल मेक योर डिसीजंस. ठीक है, तो विल कम टू दैट पर्टिकुलर पार्ट जहां पे जो मेथड्स आपके एनपीवी, पेबैक पीरियड, आईआरआर, इनको हम लोग समझेंगे. So a decision by a business to make capital investment is a long-term growth strategy. A company plan and implement capital investment in order to ensure future growth or to increase the market value of that particular organization. ठीक है? Capital investment generally are made to increase operational capacity. So operational capacity, property, plants, equipments, goodwill, patent, copyrights, capture a larger share of market and generate more revenue and profit for the organization. So this is the primary agenda of your capital investment. ठीक है, बहुत आसान है. So that means कि जो आपका funds है that we are deploying in these different areas and जिससे हम अपनी जो कैपेसिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज हैं, उनको इंक्रीज कर रहे होते हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू एनहेंस आर और मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट एरियाज ऑल्सो. ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा दैट इज इन लैंड, बिल्डिंग, एसेट अंडर डेवलपमेंट लाइक रिसर्च वर्क इन अदर्स, ठीक है, मशीन, सॉफ्टवेयर या अदर्स, ये सब आपका जो इसका पोर्शन होगा. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सो यहाँ पे हाउ वेल and or investment fit into the long term strategy of the business. This is very first question. Whether a project increase in sales for the activity is being increased with the actually occurs. तो अगर हम activities productive capacities को बढ़ा रहे हैं तो उससे हमारी सेल एक्चुअली में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी. Whether a project increase in fixed asset will increase the break even points of the business, requiring the फर्म टू जनरेट मोर प्रॉफिट और मोर सेल्स. ठीक है, अगर हम अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, दैट इज डेफिनेटली लीड टू योर ब्रेक इवन पॉइंट्स. वो आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स को इंक्रीज करेगा. ठीक है, सो आपकी इतनी सेल कर पाएंगे कि जिससे आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स जो पहले के हिसाब से था और आपके हिसाब से वो मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वन. ठीक है, वेदर द इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. कई बार ऐसा होता है कि जो रेगुलेटरी या जो कंप्लाइंसेस है उनको फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उनकी हिसाब से जरूरी है. वेदर द फर्म हैज सफिशिएंट फंडिंग अवेलेबल. अब आपने प्लान कर दिया 5,000 करोड़ का, आपके पास 100 करोड़ है. सो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो दैट इज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. नाउ let's say we have 100 crore rupees to invest in these three different project. ठीक है, आपके पास तीन अल्टरनेट्स हैं. सो नाउ विच अल्टरनेट इज बेस्ट फिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. इन तीनों में से हमें वो पैसा किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट विल डू स्क्रीनिंग. मतलब ये जितने भी अवेलेबल अल्टरनेट्स आपके हैं इनमें से आपका बिजनेस कितना सुटेबिलिटी उसमें आपका रखता है. लेट्स से यू आर रनिंग अ फूड चेन बिजनेस. ठीक है, आप कोई होटल रेस्टोरेंट या ऐसा चला रहे हैं. ठीक है, अब आपके पास लाइक लेट्स से यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट प्लान. ठीक है, तो उसमें अल्टरनेट ऐसे हैं कि आपके पास जैसे 100 करोड़ रुपए है, आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो. आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आने वाले समय में उनमें आप होटल्स बना पाए. ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं टूर एंड ट्रेवल भी स्टार्ट करना चाहते हैं उसके साथ, जो भी अगेन आपका जो आपके गेस्ट आएंगे उनको आप घुमा सकते हैं, उसके लिए भी फिजिबिलिटी आपकी बनती है. एक ऑप्शन ऐसा जो आपके कोर बिजनेस से कहीं अलग है, तो वो जो अलग है ना उसको स्क्रीनिंग में आप अलग कर देंगे, हटा देंगे. देन आपके पास ये ऑप्शन बचे, आप दो अल्टरनेट अभी भी कि हमें और ज्यादा होटल्स खोलने चाहिए या फिर हमें टूर एंड ट्रेवल वाले पे काम करना चाहिए जिससे हमारा थोड़ा बिजनेस और डाइवर्सिफाइड हो जाए और अच्छे रेवेन्यूज हो सके. तो इन दोनों में से आप यू विल अप्लाई, आप यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका, या फिर आप आईआरआर इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप पे बैक पीरियड करेंगे. सबसे ज्यादा हम लोग एनपीवी आपका यूज करते हैं. तो जैसे सपोज दैट प्रोजेक्ट ए इज एनपीवी इज 10 और प्रोजेक्ट 2 का है आपका 2. ठीक है, सो देखो जहां पे जिसका एनपीवी में डिसीजन कैसे होंगे, इफ योर एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 सो यू शुड एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है, उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए. जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी जितना हायर होगा वो आपको अडॉप्ट करना चाहिए. सो वी विल गो विद दिस पर्टिकुलर वन बिकॉज यहाँ पे आपके रिटर्न्स ज्यादा हैं. ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग बिजनेस हैं
अगर आप चाहते हैं कि दोनों को रन करना इतना कैपिटल है वो भी आप कर सकते हैं, बट अगर आप एक चीज में आपका है, ठीक है, सो अगर मतलब एक चीज करने के लिए आपके पास दो अल्टरनेट है, सो विल यू विल गो विद दिस पर्टिकुलर वन, दिस वे यू विल मेक योर डिसीजंस, ठीक है। तो जिसमें आपको हेल्प लगेगी किसकी, मेथड्स की, लाइक एनपीवी, आईआरआर एंड पेबैक पीरियड, ठीक है। सो कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच investor determine the value of a potential investment project. The three most common approaches to project selection are payback period, ठीक है, then we have interest, internal rate of return, IRR, and the most famous one, net present value. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनपीवी मेथड की, ठीक है। अब देखो एनपीवी मेथड, हाउ यू विल अंडरस्टैंड एनपीवी, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होता है आपका, ठीक है। सो जो कि आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर काम करता है और प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करता है, ठीक है। कैसे इसका यूजेज है उसको जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। सो सपोज दैट वी हैव अ प्रोजेक्ट एक्स, ठीक है, हमें आपका एक प्रोजेक्ट एक्स आपका जिसके ऊपर काम करना है, ठीक है, एंड द इनिशियल आउटफ्लो इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज सपोज दैट ₹1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसपे 1 करोड़ रुपए अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपका जो इनफ्लोज है, तो दिस इज योर आउटफ्लो, ठीक है, इनिशियल आउटफ्लो, एंड योर इनफ्लोज, आपका इनफ्लोज कैसे हैं इसमें, आपका फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। सो फ्यूचर वैल्यू आपके कैसे इससे मिलेगी आपको, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज 1 करोड़ रुपीज, एंड दिस प्रोजेक्ट इज सपोज दैट फॉर 5 years, पहले साल आपको जो इनफ्लो हो रहा है दैट इज 30 lakhs, ठीक है। सेकेंड ईयर आपका, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर योर इनफ्लो इज सपोज दैट 40 lakhs, ठीक है, एंड थर्ड ईयर यू आर गेटिंग, दिस प्रोजेक्ट इज 3 years, सो यू आर गेटिंग सपोज दैट 50 lakhs, ठीक है। तो 3 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें आपके इनफ्लोज कुछ इस तरीके से हैं। अब यहाँ पे जो एनपीवी का रोल है वो यहां से शुरू होता है, ठीक है। सो इन सब का टोटल इज हाउ मच, सो आपका 90, आपका 1.20 करोड़। नॉर्मल देखने में लग रहा है यार कि अच्छा है कि हमें, अगर हम 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें तो 3 साल के एंड में हमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिल रहा है, बट दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनफ्लोज। हमें एनपीवी मेथड बोलता है इसके ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए, वी शुड वर्क ऑन, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो, मतलब ये जो 30 लाख है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, 40 लाख है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, 50 लाख है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, वाई सो, बिकॉज दिस इन्वेस्टमेंट वी आर मेकिंग टूडे, ठीक है, ये आपका आउटफ्लो जो है आज का है, तो जो फ्यूचर इनफ्लोज हो रहे हैं उनका वैल्यूएशन भी आपका आज की तरफ से होना चाहिए, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि जो आज का 1 रुपए है, ठीक है, सो टुडेज 1 रुपी हैव ग्रेटर वैल्यू देन एट द एंड ऑफ 1 years 1 रुपी, ठीक है। आज का जो 1 रुपए है उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, आपका 1 साल के बाद जो 1 रुपए होगा, ठीक है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपका इन्फ्लेशन है, ऐसे बहुत सारे रीजन जो आपका, इसलिए हम लोग डिस्काउंट फैक्टर्स पर आपका जाते हैं, ठीक है। सो डिस्काउंट मतलब एनपीवी मेथड इज बेस्ड ऑन डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, तो इन फैक्टर्स को आपको क्या करना होगा, यू हैव टू डिस्काउंट दोस पर्टिकुलर फैक्टर्स, राइट, इतना समझ में आया। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 30 लाख रुपीज टुडे, हाउ यू विल कैलकुलेट दैट वन, ठीक है। इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो डिवाइड बाय 1 + r की पावर n, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। सो इनफ्लो इज आपका, जैसे हमारे पहली केस में 30 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय 1 + r, r इज r इक्वल टू डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट सपोज दैट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज 10%, तो क्या हो जाएगा 1 + r मीन्स 0.10 की पावर n, 1 आपका, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकेंड ईयर के लिए प्लस आपका 40 लैक्स 1 + r 0.10 की पावर 2, ऐसे ही आपका थर्ड ईयर के लिए थर्ड प्लस आपका 50 लैक्स डिवाइड बाय 1 + r 0.10 की पावर 3। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करने होंगे, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज 1 करोड़ रुपीज। अब अज्यूम दैट, मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल नंबर्स लेके चल रहा हूं, ठीक है, सपोज दैट इसका वैल्यू इज 25 लाख, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन, आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है।
एंड इसका वैल्यू इज सपोज दैट 33 lakhs एंड इसका वैल्यू इज सपोज दैट 40 lakhs, ठीक है। तो अब इनका टोटल ये हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। दिस डज नॉट मैटर टू अस, ये हमें मैटर नहीं करता, बिकॉज ये क्या है, फ्यूचर इनफ्लोज। हमें मैटर क्या करता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो, ठीक है। सो विच इज बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड मेथड। तो इनका वैल्यू जैसे 4 और 3 7 मतलब 73 लाख, 73 लाख और आपका कितना हो गया 73, 93 और आपका 98 lakhs। तो इन सब का टोटल इज हाउ मच, 98 लाख रुपीज। दैट मीन्स योर एनपीवी, आपका एनपीवी क्या है, इज लेस देन जीरो, ठीक है। आपका एनपीवी इज लेस देन जीरो, सो वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज गॉट रिजेक्टेड, ठीक है। एक्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। व्हेन वी एक्सेप्ट आप प्रोजेक्ट, व्हेन आर एनपीवी is greater than zero, ठीक है, except when your NPV is less than zero, reject, and when your NPV is, अगर आपका NPV क्या है, इक्वल टू जीरो है, सो अप्लाई IRR, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द लॉजिक, ठीक है, ये आपका लॉजिक है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं यहाँ पे, एक बार जल्दी से मैं आपको इसको रिकैप करने की कोशिश करता हूँ। एनपीवी विच इज बेस्ड ऑन डिस्काउंटिंग मेथड, डिस्काउंट हम लोग कर रहे होते हैं इन चीजों को, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस, ठीक है। सो प्रोजेक्ट एक्स जहां पे हमने आपका इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपीज, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। इसका जो फ्यूचर इनफ्लोज है, दीज आर द फ्यूचर इनफ्लोज। आपका एक साल के एंड में हमें मिलेगा 30 लाख रुपए, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 25 लाख रुपए। कैसे निकाला, इनफ्लो डिवाइड बाय 1 + r की पावर 1, ठीक है। वैसे ही आपका जैसे ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो इन सबका हमने निकाला टोटल, इन सब का टोटल इज 98 करोड़, -1 करोड़ करें तो ये निगेटिव में है, ठीक है। सो दैट मीन्स निगेटिव में 2 लाख रुपए आपका है। दैट मीन्स वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बिकॉज when NPV is less than zero, we should reject that particular project. इस तरीके से आपका ये काम करता है, understood? So net present value is the difference between present value of cash inflows and present value of cash outflow, ठीक है। आउट इनफ्लो कितना हो रहा था, 98 lakhs, और आपका जो फ्यूचर इनफ्लोज थे उनका प्रेजेंट वैल्यू, एंड जो अभी हमने इनिशियली 1 करोड़ रुपीज उसमें आपका डाला था, ठीक है। So net present value method is a tool for analyzing profitability of a particular project. It take into consideration the time value of money. The cash flow in the future will be a lesser value than the cash flow of today, because उसमें बहुत सारे जैसे इन्फ्लेशन एक नॉर्मल एजेंडा या अदर्स हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। अब देखो बहुत बार क्या होता है, मैंने बहुत बार ये चीज एक्सपीरियंस की है, एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपको वो ये कैलकुलेट करने के लिए देगा, सो हार्डली दिल गिव फॉर 3 years, ठीक है। मतलब ज्यादा नहीं देगा कि आपका प्रोजेक्ट का एज 10 years है, ऐसा नहीं देगा, ठीक है। अगर वो 10 year देगा तो वो क्या करेगा आपका, वहां पे जैसे एट द एंड ऑफ 1 year 1 रुपी इक्वल टू उस वो आपको बना करके दे देगा 0.90, जैसे आपका मतलब आज का जो 1 रुपए है वो एक साल बाद के एंड में कितना है, 90 पैसा है, ठीक है। यहाँ पे उसने दे दिया आपका 85 पैसा, आपका 0.80, यहाँ पे आपका दे दिया उसने सपोज दैट 75 पैसा। तो व्हाट यू हैव टू डू, उसने आपके लिए ये कैलकुलेट करके दे दिया, सो यू जस्ट हैव टू जो जो भी आपका इनफ्लो है, ठीक है, इनफ्लो इनटू आपका ये जो है, ठीक है, इनफ्लो इनटू दिस, इनफ्लो इनटू दिस, उससे आपका और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे केस कर लेते हैं, ठीक है। So ABC Limited want to expand its business, and so it is willing to invest how much, 10 lakh rupees, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है आपका ABC। So this is your present value of outflow, how much, 10 lakh rupees। अब इसका इनफ्लो देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर दे आर गेटिंग 1 lakh rupees, ठीक है। सेकेंड ईयर 2,50,000, थर्ड ईयर 3,50,000, फोर्थ ईयर 2,65,000, एंड फिफ्थ ईयर आपका 4,15,000। तो अब सेम इसी तरीके से आपको इनको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 सबका कैलकुलेट करोगे। आपका डिस्काउंट रेट कितना दिया है, 9%, विच इज 9% इक्वल टू कितना होता है, 0.09। तो आपका पावर 1, पावर 2, पावर 3 ऐसा आप कैलकुलेट करते हुए जाएंगे, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर इसका आउटफ्लो आपका पॉजिटिव होता है तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। जैसे मतलब दिस इज योर इनिशियल आउटफ्लो, ठीक है, एंड इनफ्लो इज
योर इनफ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 5 ईयर, ठीक है। तो ये आपके इनफ्लो जो क्वेश्चन में दिए थे, ये आपका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज, ठीक है। फ्यूचर फ्यूचर इनफ्लोज, ठीक है। जो फ्यूचर इनफ्लो मतलब इनकी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। जैसे ये तो आपका 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा, ये क्या है आपका 10 लाख 1 लाख है, तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है आफ्टर अप्लाइंग दिस 91,010। 2,50,000 का 2,10,000 समथिंग, 3 लाख दिस का 10। अब इनका टोटल, इसका टोटल अगर इसका टोटल आपका पॉजिटिव में है देन यू शुड एक्सेप्ट, अदरवाइज यू शुड रिजेक्ट दिस वन, ठीक है। जैसे टोटल देख लेते हैं इसका कितना है। सो द टोटल सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज आपका 10,29,879, 10,29,879 माइनस इनिशियल इनफ्लो कितना था 10 लाख रुपीज। तो दिस इज मींस आपको इस प्रोजेक्ट से आपका पॉजिटिव इनफ्लो है कितने का, 29,000 का। सो यू मे एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज योर एनपीवी इज इन पॉजिटिव, राइट, अंडरस्टूड। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके उसमें दिया गया है बुक के अंदर, ठीक है। बुक का क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी है जो आपका टॉय मेकिंग कंपनी है, ठीक है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। सो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो, जिसके पास एक दुविधा है, दुविधा मतलब दो प्रोजेक्ट इसके पास है। प्रोजेक्ट ए कि हमें एक नया टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहिए, दूसरा प्रोजेक्ट बी आपका कि हमें जो एग्जिस्टिंग है उसको हमें रिनोवेट करना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर आप नया प्लांट लगाओगे तो आपकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगी, बट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी दैट विल बी लेसर, ठीक है, क्योंकि नई मशीन और सब कुछ नया होगा तो वो टॉय आसानी से और कम प्राइस पे बनाएगा। पुराने प्लांट को अगर आप रिनोवेट करोगे तो वहां पे इनिशियल कॉस्ट कम होगी, बट ओल्ड मशीन इन सब चीजें हैं तो उसका आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन। अब कंपनी इस दुविधा में है कि नया बनाया जाए या फिर आपका पुराने को रिनोवेट किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने, जैसे प्रोजेक्ट ए इज न्यू, जैसे आपका इनिशियल आउटफ्लो इज 2,000 करोड़, सपोज दैट यहां पे अब इनफ्लो क्या है 350, 500, 600, 800, 800, 600, दिस इज फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से इनकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपका, ये है, ठीक है। और ये कितने हैं, पॉजिटिव है 564। ऑब्वियसली दे शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, पहला तो प्रोजेक्ट ए। अब प्रोजेक्ट बी भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट बी आपका इनिशियल आपका जहां पे रिनोवेट कर रहे हो 1500, तो 1500 है, ये आपके इनफ्लोज हैं, ठीक है। और इनका अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू देखें दैट इज ऑल्सो इन पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे भी जो आपका प्रोजेक्ट बी है वो भी क्या है आपका पॉजिटिव में है 373। अब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा एक्सेप्ट करेंगे तो वी विल गो विद प्रोजेक्ट ए। वाई वी विल एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी जितना हाईएस्ट होगा वो प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उतनी ज्यादा है, ठीक है। अगर ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट होते कि एक हमें मार्कर बनाना है, एक हमें आपका ये आपका पॉइंटर बनाना है, ठीक है, दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, अगर कंपनी की कैपेसिटी है तो दे कैन गो विद दी बोथ दी प्रोजेक्ट। बट यहाँ पे है कि मार्कर बनाना है, मेथड ए ये है, मेथड बी ये है, तो मेथड ए आपका जो ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, ज्यादा फिजिबल है, जहां से प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, सो वी विल गो विद दिस पर्टिकुलर वन। अंडरस्टूड, क्लियर है सबको, ठीक है। कोई डाउट है तो आप अपने डाउट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑन कंपैरिजन NPV of project A and B both are project in positive. NPV of project A is more than NPV of project B. Hence, the firm should go with the project A. तो ये भी क्या कह रहे हैं आपका project A के साथ जाना चाहिए. If project A and B were independent project, one this, ठीक है. So rather than mutually exclusive investment opportunities, then the firm would maximize increase by investing in both the project. ठीक है, अगर इतनी कैपेसिटी है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो सब अगर यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई, समझ लो 90% आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला जो एरिया है ना वो आपका कवर हो गया। टर्म लोन आप लोग कर लोगे, बेसिक चीजें हैं और आपके डेली बेसिस पे भी चीजें होती हैं, बट ये चीज और ये चीजें आपको सीआईबी एबीएफएम के अंदर भी हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले मेथड पे, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड आईआरआर को जनरली हम लोग अप्लाई करते हैं जब एनपीवी क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। तो एनपीवी 1 करोड़ रुपए का आपका इनिशियल इनफ्लो है और जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लो है वो भी 1 करोड़ इक्वल हो गया, तो वहां पे आप आईआरआर की मदद ले सकते हैं। डिस्काउंट रेट आपका क्या होगा, हायर है उसके बेसिस पे, ठीक है। सो जो मतलब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज हायर देन योर डिस्काउंट रेट, सो विल गो विद दैट, अगर लोअर है तो रिजेक्ट दिस, ठीक है।
So IRR is a metric used in financial analysis to estimate the profitability of the potential investment. IRR is a discount rate that make the net present value of all cash flow equal to zero in discounted cash flow analysis. ठीक है, सो इस तरीके से जहां पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर आई इज टाइम ड्यूरेशन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन भी किए गए. सो जैसे आपका लेटेस्ट एक कंपनी जिसका ऑप्शन दिया है आपको, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ रिटर्न आर एस follows. Initial investment 5 lakh, ठीक है, incremental increase per year is 2 lakh, ठीक है, and replacement value is 45,270. Life of this asset is 3 years, and if we assume IRR at 13%, तो इसका discount rate if less than 13%, you should accept this one. अगर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए. तो इसका जो IRR है वो आपका 13% है. ठीक है, तो लेट्स सी दिस वन. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, दीज आर योर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज बेस्ड ऑन दिस वन. ठीक है, जैसे अभी हमने जो फॉर्मूला भी पास्ट में आपका देखा था. सो द टोटल ऑफ द कॉलम डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोक्सीमेटली सम अप टू जीरो, मेकिंग एनपीवी इक्वल टू जीरो. हेंस द डिस्काउंटेड रेट ऑफ द बेस्ट रेट, सो मतलब 13% इज बेस्ट रेट. अगर 13% में डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, सो दैट मीन्स दे शुड एक्सेप्ट दिस वन. Hence, it is best rate, the return of investment. The cost of capital of company is 10% and your IRR is 13%. You should go for this one. And अगर ये 12% भी होता तो भी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते थे. If the company has another opportunity to invest the money in a project, give 12% return, the company will still go with this. क्योंकि यहाँ पे IRR क्या आपका 13% है. So you should go with that particular one. बहुत ही आपका सिंपल से लॉजिक के साथ. नेक्स्ट वन, अगला जो हमारे पास है पे बैक पीरियड. व्हाट इज पे बैक पीरियड? लेट्स से वी आर इन्वेस्टिंग 1 crore rupees इन सम प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट ए, एंड दैट प्रोजेक्ट इज फॉर 5 years. सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट बैक आवर मनी. ठीक है, जो हमारा जो 1 crore रुपए है वो कितने समय में वापस हो जाएगा. जैसे 1 crore रुपए आपका वापस हो जाएगा 3 साल में, तो आपका पे बैक पीरियड है 3 साल. जो बाकी का 2 साल है दैट इज योर प्रॉफिट एरिया. ठीक है, वो आपका प्रॉफिट टाइम होगा. ठीक है, सो जैसे पे बैक पीरियड इज अमाउंट to be initially invested divide by estimated annual cash flow per year. ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ये काउंट होगा. Simply speaking, payback period is the period at the end of which the initial investment is entirely returned to the investor. 1 crore रुपए इन्वेस्ट किया था, 3 साल में वापस हो गया, 2 साल आपके प्रॉफिट के. तो पेबैक पीरियड इज 3 years in that case. ठीक है, so return on investment is the net cash flow for each of the years of operation when the cumulative cash flow is equal to the investment is considered as return and no further. ठीक है, उसके बाद उसको बचा नहीं, उसके बाद जो बचा है that is your आपका प्रॉफिट. हाउ यू कैलकुलेट अमाउंट टू बी इनिशियली इन्वेस्टेड और आपका एस्टिमेटेड एनुअल कैश फ्लो, कैश इनफ्लो आपका, जैसे आपका 1 crore रुपए हमने इन्वेस्ट किया है और एस्टिमेटेड इनफ्लो इज सपोज दैट आपका suppose that 25 lakhs. ठीक है, तो how long it will take? 4 years. ठीक है, so 1 crore divided by 25 lakh is equal to 4 years. So this project will take 4 years. इसका payback period है 4 years. उसके बाद आपके लिए प्रॉफिट वाला जो एरा है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आपका एक कैलकुलेशन आपको सिंपली आपके बुक के अंदर जो दिया गया था, ठीक है, लेट्स से 20 lakhs इज द आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और आपका 3,50,000 पर एनम, सो इट इज 5.71 years जो आपका इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज इट. तो ये गाइस आपका एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट जहाँ पे एनपीवी और उसके सराउंडिंग जो आपकी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से देखिए, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज एंड सून आई विल कम अप विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर, तो क्वेश्चंस के थ्रू आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे. ट्राई की आप तब तक फाउंडेशन वाइज आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए. ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट्स में आपका लिख के बताइएगा. ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई और क्वेरीज हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. सारी क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल रही हैं, वो आपका पीपीपी हो, आरबीडब्ल्यूएम हो. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वेरी सून वी विल स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी एज वेल. तो पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए. ठीक है, सो एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो बिल्कुल जी जान से लग जाइए.
थोड़ा थोड़ा टाइम अभी कंट्रीब्यूट करेंगे तो एग्जाम टाइम में आपका हफड़ा थफड़ी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप अभी नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको जो आपका 4 घंटे से काम चल जाता था उससे काम नहीं चलेगा, और आप फिर 50 मार्क्स लाने के लिए वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर हाँ अभी थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करते जाएंगे, बिलीव मी गाइस, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई सी यू टुमारो एट 7 PM विद अनदर सेशन बेस्ड ऑन लाइक AFM यूनिट नंबर 26, जिसको हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद फ्रेंड्स, राइट? सो बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।